Okay, now see the 11th question. What is given in the 11th question? A 25% of a sum of money is rupees 450. What is the total sum of money? Okay. What does this indicate? Yes. Raise your hands. Those who wish to give the answer. What does this indicate? 25% of a sum of money is rupees 450. What is the total sum of money? Yes, Vaishnavi. Yes, sir. Hmm. 25% is equal to rupees 450. Correct. 25% indicates rupees 450. So 100% is equal to X. rupees X. Okay. Yes, we Just will do cross multiplications. correct. 25 into X. 25 into X is equal to 100 into 450. Correct. X equal to 100 into 450 upon 25. Correct. So 450 into 4, what it comes? 15 to 4. 1800. Okay. 1800. So write down the final answer. Yes. The total sum of money Sum of money is rupees 1800. is equal to rupees 1800. Okay. Yes, sir. Next, Yes. Siddhi. Siddhi, tell me the answer for next one. Siddhi Kapse. Yes, sir. Sir, the question is the ratio between the numbers of males and females in an office is 3:4. If the number of females working in the office is 28, find the number of males working in that office. Okay. So, sir, first we will let the number of male be 3x and female 4x. Correct. Let the number of, and how you have written Male, it, from this ratio you have written it. Correct. Let the number of yes, male is equal to 3x and number of female is equal is to equal to 4x. 4x. So the value of females is given. So 4x is equals to 28. Okay. And number of female is also given to us. Number of female Yes, sir. is equal to 28. So what we will write, 28. 4x is equal to So 20. 28 and the value of x is equals to 7 because we plus the value of 3 plus 4 is equals to 7. Okay, what we have to find then? We have to find the number of male. So we will subtract 28 minus 7 is equals to 21. See here. Okay, that is the way. By that way also we will get the number of males. Now number of males is equal to 3x. So we are having the value of x. 3 into Yes, 7. What it will come? 7. 21. 21. So by this way also you can get the answer. Okay. Akshara, next one. Yes, sir. Hmm. Sir, the question is Rajat bought a sweater and saved rupees 20 when discount of 20% is given. What is the price of the Akshara, your mic is on mute. Yes, sir. Huh. Sir, the question is Rajat bought a sweater and saved rupees 20 when discount of 20% is given. What is the price of sweater before discount? Okay. What does it indicate then? It means that Rajat bought a sweater and it saved 20 rupees and 20% discount is there. 20% is equal to rupees 20. So 100% means what? 100% is equal to X. Rupees X. Correct.
rupees x. Then we will cross multiply 20 into x, Hmm. 100 into 20. Hmm. Then 20x and 20 into 100 upon x equals to 20 into 100 upon 20. 20 will cancel, x equals to 100. So what is the price of the sweater? The price of sweater is rupees 100. The price of sweater is equal to rupees 100. Okay. Rajat bought a sweater and saved rupees 20 when 20% discount is given. What is the price of the sweater? Yes, it is correct. Yes, Lakshmi Nivas, what happened? Hmm. Bolo. Yes, sir. Hmm. Sir, question is not visible. Means you want to say the answer of next one. I thought you have a doubt. No, sir, I don't have that. Okay, next one. Bolo. Question number 14. A team won 5 games and lost 3 games. What is what is ratio of the games won to the games played, the game lost to the games won? A team won 5 games. A team lost Lost 3 games. 3 games. Therefore, total number of games will be how much? 7. 5 plus 3, 7. अच्छा 5 plus 3 7 होता है क्या? I was Sorry, not. 8. So 5 plus 3, 8. Okay, We will add 5 plus 3 is equals to 8. is equal to 8 games. So total number of games are 8 games. Okay. 8. Now first one, A1. What is required? Games won to the games played. So required ratio will be what? Hello? Yes. So Required ratio. required ratio will be games won upon total games So is game. equals to 5 games won and total 8 games, and required ratio of game loss to the games won is equals to. So, sir, in B1, we have to do with ratio of first one or same बेटा or गेम 5 गेम लॉस्ट कितने हैं? 3 है. गेम वन कितने हैं? 5 है. तो ऊपर 3 5. आएगा, नीचे 5 आएगा. दैट्स इट. Okay, sir. 3/5. Fine. Sir, may I ask one question? Mute yourself. Let others also get the chance. Yes, Palak. Sir, after this exercise, Okay, fine. this. Mute yourself. I will explain. Mute yourself. Yes. Okay, next topic is profit and loss. So आपको सिंपल भाषा में पता होगा कि अगर आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे अगर आपको कुछ एडिशनल अमाउंट मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट. अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है और आप उसको 90 रुपीज में सेल कर रहे हो तो इन दैट केस देयर इज अ लॉस. यानी प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस छोटा छोटा होता है और सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तब प्रॉफिट होता है. और उसका एग्जैक्टली रिवर्स केस, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा होता है, तो वो केस में क्या होता है? लॉस होता है. ओके. Like for example, I have purchased one book. Okay, I have purchased one book which is of ₹100. ओके. अब ये ₹100 में परचेस करने के बाद मैं ये बुक को अगर मैं ₹120 में सेल कर रहा हूं, यानी ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स इन दिस केस आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹20. I am having a profit of ₹20. But exactly opposite case, I am having a book, okay, which is of ₹100 and I am selling it at ₹80. I am selling it at ₹80. तो ये केस में मुझे लॉस हुआ है क्योंकि मैंने ज्यादा में खरीदा है और कम में सेल किया है. सो इन दिस केस आई हैव अ लॉस ऑफ ₹20. Okay, I have a loss of
20. Is it clear to you what is profit and what is loss? ये समझ में आया क्या? जब आप कम में खरीदते हो, ज्यादा में सेल करते हो, तो वो केस में प्रॉफिट होता है. जब आप ज्यादा में खरीदते हो और कम में सेल करते हो, तो वो केस में लॉस होता है. ओके, सिंपल भाषा में. Okay, now I will ask some question. Okay, Palak, you tell me. Yes, sir. I have purchased a toy, okay, Yes. of rupees 350, okay, and I have sold that Yes. toy at rupees 375. What is the profit? Sir, the profit is of 375 minus 3. Sir, the profit is of 25 rupees. In this case, we are having the profit because हमने कम में खरीदा है, ज्यादा में. Cost price Okay, cost is price is less, less. selling price is. Selling price is more. Okay, mute yourself. Om Jadhav, tell me. Yes, sir. I have purchased a car, okay, small playing car of small kids. It is of rupees 200 and I have sold it at rupees 160. तो ये केस में क्या हुआ है, मुझे बोलो आप. लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? Because the cost price is more and selling price is less, so the loss is of 40 rupees. Correct. There is a loss of rupees 40. Okay. So is it clear to everyone what is profit and what is loss? Okay. Now see, this page you will have to write it in your CW. As it is, you will write it in your CW. Okay, now expenses like transportation, storage, taxes, etc. known as overheads. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, टैक्सेस एक्सेट्रा, ये जो भी होता है इसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं. और ओवरहेड जो है हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं बिफोर फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस. बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, टैक्सेस, जो कुछ भी गिवन होगा क्वेश्चन में उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं और ओवरहेड को हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं और उसके बाद ही हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन एग्जांपल्स इट विल बी मोर क्लियर. This page you will write it in your CW as it is. एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा. किसी भी चीज को अगर आप लेते हो, साइकिल लेते हो, तो साइकिल पे खर्चा होता ही है ना. पंचर होता है साइकिल या फिर कुछ काम निकलता है साइकिल का. मेंटेनेंस कॉस्ट. एक्सपेंसेस मीन्स मेंटेनेंस कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस. तो अभी जब प्रॉफिट होगा तो वो केस में परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा, जब लॉस होगा वो केस में परसेंटेज लॉस निकलेगा. अब ये कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे एग्जांपल के तौर पे. आई हैव अ टॉय, ओके, आई परचेस द टॉय फॉर रुपीज 200. ओके, आई परचेस द टॉय फॉर रुपीज 200. दैट मीन्स ये मेरा क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ, खरीदने वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस. ओके, और मैं ये टॉय को सेल कर रहा हूं रुपीज 250 में, यानी ये मेरा क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ. तो ये केस में मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ये केस में मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? आर्या मिरकड़. यस सर, हमें प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज का. हमें प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज का. अब ये जो प्रॉफिट हुआ है हमें 50 रुपीज का, हम लोग इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट. ओके, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट. तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 50 रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 200 multiplied by 100. This 0 this 0 gets cancelled. 0 cancel. So 25%. 2 ones are 225. So परसेंटेज प्रॉफिट 25%. कितना है? ये ट्रांजैक्शन में परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 25%.
ओके Yes, sir. तो काफी इजी है ये। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, चाहे परसेंटेज लॉस हो परसेंटेज प्रॉफिट हो, डिनोमिनेटर में हर बार कॉस्ट प्राइस ही आएगा। यू कैन चेक इट हियर ऑल्सो, परसेंटेज लॉस के फॉर्मूला में भी आप चेक कर सकते हो, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ओके अगर आप परसेंटेज लॉस निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में लॉस आ जाएगा, अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू द फॉर्मूलाज? इज इट क्लियर टू यू? Please give the response in the chat box. See, this topic is very important because we require this topic in our day-to-day life also. Okay. Now we will see the example of percentage loss. Suppose I have purchased a car, a toy car. Okay. It is of rupees 250. Okay. It is of rupees 250 and I am selling it at rupees 150. आई एम सेलिंग इट एट रुपीज 150। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ था जिसपे मैंने खरीदा है, दिस इज माई सेलिंग प्राइस जिसपे मैंने सेल किया है। ओके तो ये केस में मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? फर्स्ट टेल मी दैट। यस लक्ष्मी निवास, इन दिस ट्रांजेक्शन आई एम हैविंग अ प्रॉफिट और लॉस? वैष्णवी बोलो। Yes, sir. वैष्णवी Yes, sir. We have a loss of 50 rupees. 50, 250 और 150 No, में no, no, no. 50 का 100. वी हैव अ लॉस ऑफ रुपीज 100। तो 100 ये rupees. केस में हम लोग परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। ओके सो व्हाट इज परसेंटेज लॉस? इट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 250 multiplied by 100। 100 okay multiplied by 100. 0 will get cancelled. 0 will get 5 twos are 5 fives are 5 5s are 5 20s are okay 5 1s are 5 4s are। so what is the loss in this case? 40 40. 40% का 40%. लॉस हुआ है मुझे ये केस में। ओके Yes, sir. तो Yes. इस तरीके से हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस निकालना है तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा या लॉस निकालना पड़ेगा, जो भी हुआ है वो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके वो हमको पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। ओके अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और आप बोलोगे परसेंटेज लॉस निकालना है, ऐसा नहीं जमता है। ओके परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस हुआ है तो परसेंटेज लॉस ही मिलता है। ओके नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द सम लेंट और बोरोड इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। आप किसी को पैसे उधार देते हो, ओके आप किसी को अगर पैसे उधार लेते हो या किसी को पैसे उधार देते हो या लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। okay that is called as a principal amount. Suppose I am lend I am giving some amount to Om Jadhav. Okay I am giving him rupees 10,000. I am giving him rupees 10,000. okay so ये amount जो मैं ओम को दे रहा हूं, this is called as a principal. okay मुद्दल बोलते हैं हम लोग उसको आम भाषा में, प्रिंसिपल। ओके दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैंने उसको अमाउंट दिया तो फ्री में तो दूंगा नहीं, तो उस पे वो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा। ओके उस पे वो मुझे इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट क्यों देगा? क्योंकि वो मेरा 10,000 यूज कर रहा है ना, ही इज यूजिंग माई अमाउंट, सो ही विल हैव टू पे सम इंटरेस्ट। ओके उसको हम लोग आम भाषा में ब्याज बोलते हैं। ओके आम भाषा में उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। ओके तो एंड चार्ज मेड फॉर इट्स यूज इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। तो मैंने ओम को 10,000 रुपए दिया है,
तो वो 10,000 रुपए यूज कर रहा है 1 साल के लिए, अगर वो यूज कर रहा है तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट भी देगा, वो 10,000 तो देगा ही देगा, उस पे इंटरेस्ट भी देगा। ओके। एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज बोरोड। अभी 10,000 दिया है तो कम इंटरेस्ट लगेगा, अभी मैं 1 लाख अगर दूंगा अगर उसको, तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये सुनो। एंड द लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम मीन्स अगर वो 1 साल के लिए लेता है तो कम इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल के लिए लेता है तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ये सुनो। तो ये सब चीजें हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में लगती है। ओके। सबसे पहले क्या लगता है, टाइम लगता है, और कितना अमाउंट वो ले रहा है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। नाउ द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन इट इज कॉल्ड एज अ अमाउंट। अभी सपोज मैंने ओम जादव को 10,000 रुपए दिया एट 10% इंटरेस्ट, यानी 1 साल को वो मुझे इंटरेस्ट कितना देगा, 10%। 1 साल को वो मुझे इंटरेस्ट कितना देगा, 10%। आई टोल्ड इट बाबा। हु इज दिस? Shravani More. I already told what is interest. Interest is nothing but ब्याज. Interest is nothing but ब्याज. I think so your attention is not there. So that's why you're again asking me the same question. Shravani More, unmute yourself. Yes, Shravani. Shravani More. Shravani More, unmute yourself. यस सर। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर सर मैंने कुछ भी नहीं मैसेज डाला और मैं कुछ भी नहीं बोली। आपका नाम आ रहा है बेटा यहाँ पे, 7th रोल नंबर 21 आप ही हो ना? यस सर, लेकिन मैंने कुछ भी मैसेज नहीं डाला। बेटा हर चीज रिकॉर्ड होता है, हर चीज सेव होता है, मैं आपको बता सकता हूँ सेशन होने के बाद में। ओके। Okay. The sum of principal and the interest on it for any period is called as the amount. तो जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों को अगर साथ में जोड़ देंगे तो वो बनता है अमाउंट। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपीज ओम जादव को दिया है। ओके। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 10,000, that will be the interest. Okay, so 10 upon 100 multiplied by 10,000, what it comes? 0 0 cancel, this will come rupees 1,000। तो ओम जादव मुझे 1 साल के बाद में 11,000 रुपए देगा वापस। मेरा 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही देगा, और उस पे इंटरेस्ट देगा 1,000 रुपीज। तो दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ अमाउंट। ओके। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर हम लोग साथ में जोड़ देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज द अमाउंट। सो ही विल पे मी 11,000 रुपीज आफ्टर 1 year बिकॉज ही इज यूजिंग माई मनी ना, सो विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। ओके, इज इट क्लियर टू यू? Please give the response in the chat box. There is one formula for calculating the simple interest. Okay, आप बस वो formula में values डालो, आपको आंसर आ जाएगा। There is no difficulty in that. Okay. Next, interest is usually paid at fixed intervals. Okay. या तो वो इंटरेस्ट ईयरली होगा, या हाफ ईयरली होगा, या क्वार्टरली होगा, या मंथली होगा। वो डिपेंड करता है, भी सामने वाला ईयरली दे रहा है, क्वार्टरली दे रहा है, या मंथली दे रहा है। ओके, ही इज चार्जिंग द इंटरेस्ट ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। ओके, इट डिपेंड्स। नाउ सी, मोस्टली ईयरली होता है, आपको हायर क्लास में मिलेगा आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली। ओके, तो ईयरली, व्हाट इज द फॉर्मूला? नाउ पे अटेंशन, सिंपल इंटरेस्ट, द फॉर्मूला इज P into R into T divided by 100. This is the formula for calculating simple interest.
पलक, ओके, हाँ बोलो पलक। सर अगर उसने आपसे 1 ईयर का टाइम मांगा और फिर उसके बाद भी उसने नहीं दिया तो सर उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना? जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा बेटा। ओके ओके, सर। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। अभी यहाँ पे P क्या है? P इज नथिंग बट आवर प्रिंसिपल। जो पैसे हम लोग किसी को दे रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर यानी क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट ब्याज पे हम लोग दे रहे हैं। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड टी मीन्स टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग किसी को पैसे दे रहे हैं। Now pay attention, very important thing. Now what I told, ओम जादव को मैंने 10,000 रुपए दिया। आई गेव हिम 10,000 rupees एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 10%. ओके, सो आफ्टर 1 year हाउ मच ही विल पे मी, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ही विल पे मी। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर। पी का वैल्यू क्या है? 10,000, principal is 10,000, rate of interest it is 10%, so 10 will come here, multiplied by time period is 1 year. Okay, time period is 1 year upon 100. So this two zero gets cancelled. So how much I am getting? I am getting the interest of rupees 1,000, simple interest of rupees 1,000। एक साल के बाद मुझे कितना मिल रहा है? rupees 1,000। अगर मुझे यही सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद निकालना है, if I want to calculate this simple interest after 2 years, so principal will remain same 10,000, rate of interest will also remain same 10%। now here in place of t we will have the value as 2। ओके, पहले यहाँ पे 1 था, देखो अभी टी का वैल्यू 2 है क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है हमको। ओके, तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा, तो ये केस में वो मुझे इंटरेस्ट देगा 2,000 रुपीज का। एक साल के लिए 1,000 था, 2 साल के लिए 2,000 था। जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? Okay, we will see the example, that time it will be more clear again. This page also you will write it in your CW as it is. This page also you will write it in your CW as it is. See, this is the formula for simple interest. I already told SI is equal to P into R into T, where P is what? Principal, R is the rate of interest, and T is the time period. Now see the exercise 7.2. Okay, so we have to complete the table. One table is given to us. This table is based on profit and loss. Okay, तो देखो यहाँ पे परचेस किया है पहला क्वांटिटी ए, फर्स्ट क्वांटिटी इज व्हाट? ए क्वांटिटी परचेस किया है 370 रुपीज पे, उस पे 80 रुपीज खर्चा किया है। खर्चा क्यों किया है? कुछ तो भी मेंटेनेंस का काम होगा, या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कुछ दूसरा टैक्स फिक्स कुछ होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये दोनों का सम होगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ पे? व्हाट इज 370 प्लस 80 देन? व्हाट इज 370 प्लस 80? मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवरहेड एक्सपेंस को आप परचेस प्राइस में ऐड करते हो, इट विल कम 450। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के कॉलम में, यहाँ पे आ जाएगा 450। अभी देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 450। ओके, मेरे पास प्रॉफिट भी है 90। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का वैल्यू है 90, सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 450। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस देन? ये 450 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस 450 हो जाएगा, तो 90 प्लस 450 कितना आता है? तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 540। तो यहाँ पे ये कॉलम में आ जाएगा 540। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो लॉस की जगह पे यहाँ पे डैश आ जाएगा, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं ना यहाँ पे लॉस हुआ नहीं है, सो पुट डैश हियर। ओके, और आप प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। अभी परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट इज व्हाट?
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है ₹90 का, आप यहां से वैल्यूज देख सकते हो। प्रॉफिट 90 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 450, सो 90 अपॉन 450 इंटू 100। दिस जीरो कैंसल, 9 1 जा 9, 5 जा 5, 1 जा 5, 20 जा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और लॉस हुआ नहीं है तो परसेंटेज लॉस भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी डैश आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? इस तरीके से आपको एक एक रो कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको एक एक रो कंप्लीट करना है। Okay, now we will do the B1. Okay, Palak, now you tell me. Palak Jain. Yes, yes, sir. Sir, so it is purchased in 3,000 rupees. Overhead. Sorry, sir. So purchase is rupees 3,000. Overhead expenses is dash. And Dash नहीं, यहाँ पे dash की जगह पे क्या आएगा? I want the answer for that. अच्छा. Sir, overhead expense is not given. So CP is 3100 now. So sir, we will minus it. Correct. अभी देखो यहाँ पे Overhead expense is 100. पलक, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे 370 में 80 ऐड किया था तो 450 बना था। तो यहाँ पे 3000 में मैं जो वैल्यू ऐड करेगा वो बनाएगा 3100, तो मुझे 100 ऐड करना पड़ेगा। Yes. So 100. Yes. So SP is also not given. So sir, SP we want to find. So we will write. Loss is given to we us. Loss is given to us. Yes, loss is given to us, and then there is no profit in this. So CP is 3100. What is the So we will formula? minus What is the formula for loss? First tell me. loss CP minus SP. Okay, so 62 will So be equal to CP 62 is equals to 3100 is equals to SP. minus SP. So sir, yes, minus SP. So sir, we will shift 3100 this side or 62 this side. So it will come minus 62. So 3100 minus 62. Now see, pay attention here. पलक, ये माइनस एसपी को उधर भेज दो आप, तो ये प्लस एसपी हो जाएगा, और 3100 और 62 को इधर लेके आओ तो ये माइनस 62. So 3100 minus 62 is 30. Sir, it will come 3038. 38 or 48. Sorry, 48. 38 is correct. 38 is correct. Yes, sir. So we will write SP is equals to 3038, and profit is nothing. So we will give dash there, and we no profit, no percent profit, and percent loss we have to find here. So sorry, the formula is CL upon CP into 100. So my so 62 upon 3100 into 100. 0 gets cancelled, and 31 ones and 62 is 2, so 2% loss. 2% loss. Yes. Okay, remaining things you will complete it. If you have any difficulty, you just check the video. Okay, you check the video of this A and B, you will get everything. You will complete the table. This is homework to you. Yes, sir. Because see here, if I do it, means if you will just write it, if you will just copy me, तो आपको ये कभी नहीं जमेगा। आप जब तक खुद नहीं करोगे इसको, ये नहीं जमता है किसी को, प्रॉफिट एंड लॉस। So that's why I gave this C, D, and E as homework. You try it. Okay. If you have any difficulty, check what I have done for A and B in the video.
Same things you will have to do, same logic you will have to apply for the C, D, and E.